Hello students, how are you all? I am again hoping that you all are safe and fine at home. Yes, one thing I want to mention here that it is really good to see you that most of the students had mentioned their answers in the comment section under the video. Yes, some of the students had sent the answer to me also on my WhatsApp group. लेकिन this is the question for the video only. You have to directly write down the answer in the comment section, not to my WhatsApp group. But it is really good कि most of the students participated at least. So that seems to be कि you are enjoying the video and you are understanding the video कि what I am teaching here. So it is very good. Keep it up. And one more thing I want to mention here that कि many of the notebooks I got from 7th A and 7th B, but still some of the notebooks are pending. So yes, those notebooks are pending. You have to check it by your own. Otherwise, to submit it in the school by 11 today. And second thing, कि yes, beta, you have to take the registers, not the notebook. I understand. I completely understand कि lockdown was going on. Maybe you were not having the notebooks or notebooks were not available at that time. बट अगर अभी आपने नई नोटबुक लगानी है देन यू हैव टू टेक द नॉर्मल रजिस्टर, बोथ साइड लाइनिंग रजिस्टर्स, एंड यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस विद द ब्लैक पेन एंड आंसर्स विद द ब्लू पेन. यू कैन ड्रॉ. सो बेटा आपको वो नोटबुक्स लेने की जरूरत नहीं है जो एक साइड में प्लेन है और एक साइड में लाइंस वाली होती है. यू कैन टेक द नॉर्मल रजिस्टर्स. ओके, नाउ मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. सो यस, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल यानी कि विच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अ सॉइल पोजेस. तो कोई भी तरह की सॉइल के पास क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन आवर दिस वीडियो. ठीक है, तो अभी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. तो लेट्स मूव विद मी टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हियर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल पार्टिकल्स कंटेन्स एयर इन इट. So now here I am having one soil sample in a beaker. So yes, you can easily observe that कि in a transparent beaker or plastic glass you can say I am having this soil sample. So yes, what I am going to do here now, I am going to add water in it. This is the procedure. So yes, now I am going to add water in it. So what we are observing here? Yes, see, so many bubbles are here. Yes, it is easily observable. कितने सारे bubble हैं? Still the bubbles are forming. Yes, this is our observation कि हमने क्या observe किया while performing an activity. So this is an observation कि a lot many bubbles has formed in this particular soil sample. कितने सारे bubbles बने? And still some of the bubbles are forming. See. So yes, what we can conclude by performing this activity, we can conclude that as the air bubbles are forming, that means the soil is containing air in it. Air bubbles बने क्यों? क्योंकि उसमें air present थी soil particles में. तो yes, what is the conclusion? Conclusion is that the species which is present between the particles of the soil has air in it. When we are adding water in it, then this air is coming out from the particles of the soil in the form of the bubbles, which we can easily observe. So we can conclude that the soil sample has air in it. So this is a very simple activity which you can perform at your home. So yes students, you enjoyed the experiment. Experiment was very simple. You can perform this experiment at your home also. What we have done, we just add the water in the soil sample. जो भी हमारे पास soil थी उसके अंदर हमने पानी ऐड किया. Then what we observe, हमने क्या देखा? We have seen that कि bubbles were coming from the soil sample. Bubbles वहां से निकल रहे थे. ऐसा हुआ क्यों? हम conclusion क्या निकाल सकते हैं? Actually what is happening? The air is present between the spaces of the soil particles. Soil के particles चाहे कितने भी पास पास हैं, उनके अंदर air gap present है and the air is present between them. Whenever we are adding water in it, then this air is coming out in the form of the bubbles. वो bubble बनाती है और बाहर निकलती है और ultimately we can observe it. तो conclusion is that कि air soil particles contains air in it.
Okay, so first property we have done. Now move on to second property. Second property is the soil particles contains water in it. इसके अंदर water present है. तो how we can perform this activity? We again take one beaker. हम दोबारा एक beaker लेंगे, उसमें हमने soil sample रखा. ठीक है, soil sample. और उसको हमने वॉच ग्लास से कवर कर दिया. कोई भी अपनी प्लेट ले सकते हो आप. वॉच ग्लास तो होती है ट्रांसपेरेंट कांच की प्लेट, तो आप कोई भी प्लेट ले सकते हो. नॉर्मल प्लेट भी ले सकते हो, चाइना डिश भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली कवर कर देना है. नाउ वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू इट. हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं इस पर्टिकुलर बीकर को. देन आफ्टर सम टाइम हमने इसको छोड़ दिया फॉर 5 minutes. व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग दिस particular beaker or particular sample after 5 minutes, then what we will observe, observation मतलब हमने क्या देखा. When we are removing this watch glass, then we can see, मान लो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ था. When we will see, we can see the small water droplets on the lower surface of the watch glass. यहाँ पे छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स बने होंगे उसके सरफेस पे. तो यस, ये ड्रॉपलेट्स जो बने वो क्यों बने, वो कंक्लूजन क्या है. Basically what will happen, the water is present in between the soil particles. Whenever we are providing heat to this soil sample, then the water which is present in between the soil sample will get evaporated. वो evaporated होगा and ultimately reach the lower surface of the watch glass. वो उसके lower surface पे touch करेगा. As the watch glass is hiding the surface of the beaker, वो उसको completely cover करके रखती है पूरे के पूरे surface को. तो water droplets are या water vapors are unable to come out from the beaker. वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे and they will stick to the lower surface of the watch glass. They become cool at that time. नीचे से आए, हीटिंग मिल रही है तो become hot. लेकिन ऊपर ऊपर ट्रेवल किया, काइनेटिक एनर्जी लूज करते हुए चले गए, तो ऊपर जब तक पहुंचे वो ठंडे हो गए. ठीक है, सो एट दैट टाइम दे विल कंडेंस्ड. ठंडे होंगे तो क्या बनाएंगे, कंडेंस्ड होके वाटर ड्रॉपलेट ही बनाएंगे. हमें नॉर्मल प्रोसीजर तो पता ही है. पानी गर्म होके वेपर्स बनाता है और वेपर्स ठंडे होके वाटर ड्रॉपलेट्स दोबारा बना देते हैं. तो यस, एज दे विल रीच द लोअर सरफेस ऑफ द वॉच ग्लास, दे बिकम्स कूल एंड आफ्टर कूलिंग दे कंडेंस टुगेदर to form the water droplets which we are observing actually on the lower surface of the watch glass. So that's why we are observing the water droplets on the lower surface of the watch glass. So this experiment shows that soil particle contains water in it. तो हमने एक एक्सपेरिमेंट कर देखा जिसमें हमने प्रूव किया कि soil particles contains air. Now this experiment shows that the soil particle contains water in it. So now students, our third property is soil can absorb water. This experiment we have already done in our previous experiment जो मैंने अभी किया. वहां पर आपने देखा था initially whatever the water I poured into the soil sample, it absorbs. तो yes, वो हम दोबारा भी देख सकते हैं. ये मेरे पास soil का sample है, ये water है. अगर मैं इसमें डालती हूं तो इनिशियली इट विल एब्जॉर्ब, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सॉइल की खत्म हो जाएगी देन वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस थिंग वी कैन डू बाय एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. हियर आई एम हैविंग 3 ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स. ग्रेजुएटेड मतलब यहाँ पर वॉल्यूम के लिए पैरामीटर्स बने हुए हैं कि 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम. तो यहाँ पे ग्रेजुएशन प्रेजेंट है. दिस इज ग्लास फनल, ट्रांसपेरेंट फनल है इन विच आई placed a filter paper ताकि वो फिल्टर कर सके. Here we can place the soil sample. हमने यहाँ पे अलग अलग सॉइल ली है अलग अलग केसेस के अंदर. तो यस, तीनों ही केसेस में अलग अलग सॉइल ली है. फर्स्ट वी हैव सैंडी सॉइल्स इन विच द पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज. Second one is the clay soil in which the particle size is very small, and the last one is the loamy soil in which the particle size is intermediate because of the mixture of these two soils. So yes, here we are having a particular amount of
soil sample like 50 ग्राम, हमने तीनों ही केसेस में 50-50 ग्राम लिया है. नाउ वी विल ऐड 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर. 50 मिलीलीटर ही हमने मेजर करके इसमें पानी डाला. ऑब्वियसली दिस वाटर विल एंटर इनटू दिस ग्रेजुएटेड सिलेंडर बाय पासिंग थ्रू दिस सॉइल. वो इसमें नीचे एंटर करेगा, इसमें से पास करके हमने इसमें डाला. इसमें जितना भी एब्जॉर्ब होना है, जितनी भी सॉइल की कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की, वो जब तक एब्जॉर्ब करती रहेगी. लेकिन जैसे इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो ओवरफ्लो होगा. हम इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे, लाइक फॉर 15 to 20 मिनट्स वी कीप दीज सिलेंडर्स अनडिस्टर्ब सो दैट द एक्स्ट्रा वाटर विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल will come into this graduated cylinder and collected over here. यहाँ पर कलेक्ट होने लग जाएगा और यहाँ पर अलग अलग लेवल्स बनाएगा. एंड दीज लेवल्स वी कैन इजीली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ द ग्रेजुएशन विच इज प्रेजेंट ऑन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स. तो यहाँ पर जो भी ग्रेजुएशन प्रेजेंट है, जो भी स्केल्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, कहाँ पर कम पानी इकट्ठा हुआ है. सो यस, हियर वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट कि सैंडी सॉइल में जो वाटर कलेक्शन है इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर इज द मैक्सिमम, इज द हाइएस्ट. एज द योर आंसर यू आर वेरी वेल नोज. क्या होता है कि सैंडी सॉइल में द पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज, गैप्स बहुत बड़े हैं. सो वाटर कैन इजीली फ्लो बिटवीन दीज गैप्स एंड एंटर इनटू द ग्रेजुएटेड सिलेंडर. वो नीचे आ जाएगा क्योंकि कोई उसको रोकने के लिए ही नहीं है, तो सारा का सारा पानी नीचे आने की कोशिश करेगा. तो मैक्सिमम पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा. लेकिन जो हमारा क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल के अंदर यू नो दैट द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी फाइन. So it do not allow water to come from it and to passes into the graduated cylinder. वो उसको होल्ड करने की, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और नीचे नहीं आने देगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. और लोमी सॉइल एज द सॉइल इज इन बिटवीन दीज टू, तो यहाँ पे इन बिटवीन वाटर कलेक्ट होगा. So yes students, now we have discussed about the experiment. Now it's a time to do the calculations. How we can find out the percentage of the water absorbed. So yes, if we are talking about the percentage, then we have to write 100 here because percentage का मतलब 100 से multiplication. अगर हमारे पास यहाँ पे percentage नहीं है formula में, then we do not need to write 100 here. So yes, initially we have taken the soil 50 gram of the soil. The mass of the soil is 50 gram. As I was told in the experiment also, initially we take soil 50 gram of the soil. Next one is water. The volume of the water taken initially is 50 milliliter. हमने 50 milliliter का वॉल्यूम लिया पानी का. Now the volume of the water collected in the cylinder, जो नीचे आ गया, ठीक है, that is x. ये x हमारे पास नीचे आ गया. फिर आता है वॉल्यूम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब. कितना एब्जॉर्ब हुआ, जितना हमने डाला और जितना नीचे आया. अगर हम दोनों को माइनस कर दे तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब आ जाएगा. तो ये मेरे पास इनिशियल था, ये हमारे पास सिलेंडर में जितना वॉल्यूम इकट्ठा हुआ, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया. मान लो यहाँ पे 10 मिलीलीटर पानी नीचे आ जाता है सिलेंडर में, तो कितना एब्जॉर्ब हो गया, इट्स 40 मिलीलीटर. ठीक है. तो यस, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू मास ऑफ द वाटर. As according to the rules, 1 milliliter of the water is equal to 1 gram of the water. ठीक है. ये जितना भी मिलीलीटर में वॉल्यूम होता है उतना ही हम उसको ग्राम में कह सकते हैं. तो the same amount we can say as the mass. But as we are talking in terms of the volume, then we have to write milliliter here because volume is always calculated in milliliter as a unit and mass is always calculated in gram. तो जब मैंने सेम चीज वॉल्यूम के अंदर ली तब यहाँ पे मिलीलीटर लिखा, जब सेम चीज मास में ली तब यहाँ पर ग्राम लिखा. तो अब मेरे पास मास आ गया पानी का. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई आई चेंज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू द मास ऑफ द वाटर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इनिशियली मास ऑफ द सॉइल लिया है, उसका मिलीलीटर नहीं लिया. सॉइल का मिलीलीटर नहीं निकाल सकते, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, तो हमने उसका मास लिया है. और एक कॉमन पैरामीटर रखने के लिए, कॉमन कैटेगरी रखने के लिए, हमारे आंसर को इजी करने के लिए, हमेशा हम कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, आप हायर क्लासेस में भी करोगे तो हमें यूनिट सेम रखने पड़ते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे वॉल्यूम और मास के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता था. दैट्स व्हाई आई चेंज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू द मास ऑफ द वाटर.
ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल कितना होगा, जितना भी मेरे पास यहाँ पर वाटर का अमाउंट आया डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉइल विच आई टेकन इनिशियली इनटू 100। तो यस 150 माइनस एक्स डिवाइड बाय 50 इंटू 100 परसेंटेज। तो यहाँ से हम अलग अलग केसेस में निकाल सकते हैं। जैसे अब सैंडी सॉइल के अंदर हमने बात की थी कि वहां पे एक्स का अमाउंट जो था वो सबसे ज्यादा था, ठीक है, तो 50 माइनस एक्स अल्टीमेटली क्या होगा, सबसे कम। मान लो एक्स का अमाउंट वहां पे 25 था, तो अल्टीमेटली टोटल वैल्यू मेरे पास हो गई 25 माइनस करके, तो ये अमाउंट सबसे कम होगा। मान लो क्लेई सॉइल के केस में एक्स की वैल्यू 10 थी, ठीक है, तो अल्टीमेटली माइनस करके कितना आंसर आएगा 40, तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी और लोमी सॉइल की इन दोनों के बीच में आएगी। तो इस तरह से जो भी सैंपल आपके पास अवेलेबल है आप उसको ले सकते हो, वहां पे पर्कुलेशन निकाल सकते हो, कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ वो निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पेपर में आता है, न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। So students, question of the day is, which soil has highest percentage of water absorbed by the soil? Write the answer in the comment section.